The poem which we are going to discuss today, name is Amanda, written by Robin Klein. So you tell me, how many students are scolded again and again at home? कितने बच्चे हैं जो मान जाते हैं? Those who feel bad when they are scolded, how many? Tell me. Richa is scolded again and again by her parents. रिचा को डांटना पड़ता है and she feels that no one should scold her. She is old enough to take care of herself. Is that so? तमन्ना, आई थिंक तमन्ना को किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है. तमन्ना सारे काम अपने आप करती है and no one scolds her. Actually, no need to scold her. Am I right? Yes, sir. That's very fine, exactly. This girl, Amanda, she is scolded by her mother again and again because she doesn't listen to her mother, and no, she is not paying heed to the words of her mother. She is in her own imagination. So we will read about her, how she feels, what she imagines. What is her mother? What is her mother telling to do? मदर क्या कहती है? छोटी छोटी बातें हैं जो हम करते हैं, उतनी ही चीजें हैं बस, और उसकी अपनी अलग इमेजिनेशन है. She has her own imagination. Okay, so let us start. Before we read, let us read its beginning actually. कि every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or the another. One thing or the another means कोई ना कोई एक नहीं तो दूसरी चीज, किसी न किसी चीज के लिए they are scolded not to do, है ना, ये मत करो वो मत करो, and they are controlled actually. Who controls? Obviously parents. Parents उनको control करते हैं. You too may feel that your freedom is curtailed. Curtailed means when your freedom is taken away. जैसे आपकी freedom को आपसे छीन लिया गया है. Write down some of the things you want to do, जो आप चाहते हो, but your parents, elders do not allow you to do. है ना, वो अलाव नहीं करते हैं, बिल्कुल अलाव नहीं करते हैं. आप चाहते हो सुबह जब आप सो जाते हो रात को, तो सुबह जो ना, जब तक अपने आप आंख ना खुले, यू मस्ट नॉट गेट अप, है ना, उठना ही नहीं है सुबह. तो चाहे कुछ कितनी भी चिल्लाए, कितना भी, उठना नहीं है. सुबह की नींद इतनी अच्छी है. इट्स रियली वेरी स्वीट स्लीप इन द मॉर्निंग. There are so many. When it comes to eating also, you want to have chocolates, you want to have ice creams. बहुत पता नहीं क्या क्या, बस खाना है मतलब पेट भरते जाना है, टेस्ट के पीछे भागते होते हैं. तो you also make a list, देखना आप क्या चाहते हो करना और पेरेंट्स क्या कहते हैं. To read the poem aloud, form pairs, ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए. Each reading alternates stanzas. You are in for surprise. ये भी कुछ ऐसा ही है जैसा कि आप सोचते होंगे. ठीक है, तो अमांडा नाम की लड़की है. एंड व्हाट डज शी थिंक व्हेन her mother scolds her? What does she think and what does her mother tell her to do? मदर क्या कहती है, देखो. Don't bite your nails, Amanda. Don't haunch your shoulders, Amanda. ये haunch क्या होता है? जैसे मैं see me, I'm sitting like this. अगर मैं ऐसे हो जाऊं, बिल्कुल ये कंधे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बैठते हम लोग. जैसे some students sit as if they had no bone actually. ऐसे बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं. So this is not a good habit, it's a bad habit. So she says don't hunch your shoulders. अपने soldiers को shoulders को hunch नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है. ठीक है. और ये नेल बाइटिंग पता नहीं क्या टेस्टी लगता है बच्चों को. सम ऑफ द स्टूडेंट देयर इन द हैबिट, दे डोंट नीड नेल कटर. उनको तो नेल कटर की जरूरत नहीं है, नेल क्लिपर की जरूरत नहीं है. वैसे ही खा जाते हैं, पेट में चला जाता है सारा. पता नहीं कैसी मशीनरी है अंदर, पता नहीं नाखून भी हजम कर देती है. बट इट्स अ बैड हैबिट एक्चुअली. मदर सेज डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग. स्टॉप दैट स्लाउचिंग मतलब ऐसे रिलैक्स होके बिल्कुल ऐसे झुक के बैठना. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. सीधे बैठो, सिट अप स्ट्रेट. अमांडा बार बार कह रही है. अमांडा सुन नहीं रही.
Now Amanda is not paying heed to her. Next stanza is in bracket. ये bracket में actually this is not part of the poem, may be part of the poem, but ये कहा नहीं गया है. ये कहा गया है, ये भी कहा गया है, लेकिन ये वो सोच रही है. This is her imagination. ये जो bracket में मिलेगा आपको, this is imagination of Amanda. This is what Amanda imagines. तो वो क्या सोचती है देखो कि there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Blissfully means बड़ी खुशी के साथ में. वो सोचती है, इमेजिन कर रही है कि इमराल्ड सी के अंदर कलर है, जैसे समुद्र का दूर से रंग दिखता है तो दैट इज इमराल्ड. वो कहती है कि उस सी के अंदर है ना एक लैंग्वेज सी, लेजी सी, क्या है, एक सोल इनहेबिटेंट है. सोल मतलब अकेली, इनहेबिटेंट, और वो मैं हूं, मतलब काश मैं होती. इमेजिन करती है. मरमेड, मरमेड क्या, एक इमेजिनरी फिगर होती है, विल फाइंड इन फेरी टेल्स, जिसका मुंह तो लेडी लड़की की तरह होता है और नीचे का सारा शरीर मछली की तरह होता है, टांगे नहीं होती. मरमेड यू मस्ट हैव सीन इन मूवीज आल्सो, मूवीज में आमतौर पे दिखाया जाता है. तो ये शी इमेजिन्स कि काश मैं एक मरमेड होती एंड आई वुड बी द सोल इनहैबिटेंट. इनहैबिटेंट का मतलब होता है रेजिडेंट, है ना. पूरे सी की मैं खुद अकेली होती, वहां पे मैं ही रेजिडेंट होती और वहीं रुकती मैं. ठीक है. लेजिली यहाँ वहां, ब्लिसफुली बड़ी खुशी के साथ इधर उधर घूमती, कोई भी क्या नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता. यहाँ कौन डिस्टर्ब कर रहा है, मदर डिस्टर्ब कर रही है. ठीक है. अब मम्मी भी कहाँ मानने वाली है, जब तक बच्ची मानेगी नहीं, मम्मी भी नहीं मानेगी, तो मम्मी फिर से डांट देती है और क्या कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, काम किया, होमवर्क किया. डिड यू टाइडी योर रूम, टाइडी करना होता है अरेंज करना, प्रॉपरली उसको सेट करना. डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, और मैंने तुझे ये भी कहा था कि जूते अपने साफ करके रखो. लेकिन क्या अमांडा को तो जूते डर्टी अच्छे लगते हैं, रेत से भरे हुए, कोई पूछे नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, है ना. सो हियर अगेन मदर इज स्कोल्डिंग, हम कह सकते हैं, इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्शन दे रही है. वो इंस्ट्रक्टिंग अमांडा टू फिनिश हर होमवर्क, टू टाइडी अप हर रूम एंड टू क्लीन हर शूज. अब फिर से अमांडा को बुरा लगेगा. अमांडा अगेन शी विल इमेजिन समथिंग एल्स, बट शी इज नॉट पेइंग हीड टू एनीबडी. अमांडा और आगे सोचती है, देखो ये उसकी इमेजिनेशन है. वो क्या सोचती है कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, कि काश मैं क्या होती, ऑर्फन होती. ऑर्फन को जिसके पेरेंट्स नहीं होते, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. रोमिंग मतलब घूमना, रोमिंग द स्ट्रीट. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माय हश्ड बेयर फीट. बेयर फीट मतलब जूते चप्पल कुछ नहीं पहने, नंगे पैर है, रेत के ऊपर पैटर्न्स बना रही है. पैटर्न्स कैसे बनाते हैं, गीले रेत के ऊपर जब आप चलते हो या सूखे रेत पे, तो पैर के निशान बनते हैं, है ना. ये बच्चे कब करते हैं, व्हेन दे डू इट, दे डू व्हेन दे प्ले. जो रेत में खेलते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है. कोई भी पैटर्न बनाओ रेत के अंदर. तो वो सोचती है कि काश मैं एक ऑफन होती, ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट मेकिंग पैटर्न्स ऑन द डस्ट. रेत पे मैं पैटर्न्स या निशान पैर के बना रही होती, वो भी बेफिट होके. द साइलेंस इज गोल्डन, और वहां कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं करता. साइलेंस इज गोल्डन, वहां की जो, और साइलेंट होता चारों तरफ, बड़ा अच्छा लगता है. द फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम कितनी अच्छी है, कितनी मीठी, आजादी. यानी शी वुड बी एंजॉयिंग फ्रीडम देयर. फ्रीडम को एंजॉय कर रही होती, कोई भी उसको मना नहीं करता. ऑफन है, उसको कौन बोलेगा, बिकॉज देयर इज नोबडी टू टेल हिम. कोई भी कुछ भी करने के लिए उसको कुछ नहीं कहेगा. एंड मेरे हिसाब से उसको, वो साइलेंट भी रह सकती है, साइलेंस में चारों तरफ पीस और फ्रीडम होगी, अनलिमिटेड फ्रीडम होगी, कुछ भी करो. फ्रीडम इज स्वीट एक्चुअली. यहाँ पे अगर हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट पोएटिक डिवाइस, तो हमारे पास यहाँ पे इसमें क्या पोएटिक डिवाइस हो सकता है, यहाँ पे क्या पोएटिक डिवाइस हो सकता है, ये है मेटाफर. इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, वी विल कॉल इट मेटाफर. समझ में आ रहा है बेटे, या मैं स्क्रीन से बात कर रहा हूँ. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर. यस सर. मेटाफर
कहाँ है बार मेटाफर? रिपीट करना। मेटाफर वो होता है जब हम कोई कंपैरिजन करते हैं। तो देखो, फ्रीडम और स्वीट, मिठाई के बीच में फ्रीडम कैसी होती है? स्वीट होती है। तो ये मेटाफर है। ठीक है, आगे चलें। साइलेंस इज गोल्डन। तो साइलेंस को गोल्ड कहा इन्होंने, यानी गोल्ड से कंपेयर किया साइलेंस को। तो अगेन दिस इज मेटाफर। क्लियर? इसमें रिपीटेशन भी है, बार बार जो चीजें रिपीट हो रही हैं। कौन कौन सी चीजें रिपीट हो रही हैं? जो चीजें रिपीट होंगी बार बार तो हम उसको बोलेंगे रिपीटेशन। तो ये अमांडा जो वर्ड है, ये बार 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 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब उसको रोका, डांटा मम्मी ने, लेकिन फिर उसने क्या सोचा, अब देखते हैं। सो अगेन सी इट स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया हियर। मैडम है ये। अब देखो, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? होमवर्क भी हो गया है, बट अगेन जब वो होमवर्क के लिए कहती है तो क्या सोचती है कि वो क्या होती? ऑफन होती। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन मदर इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू हर कि डोंट ईट दैट चॉकलेट। चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने। देखो तुझे एक्ने हो गए थे पहले भी चेहरे के ऊपर, याद रखो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। क्या मेरी तरफ देखो कि बच्चे क्या करते हैं? नीचे नीचे गर्दन कर लेते हैं फटाक से, मम्मी पापा बोलते रहते हैं, है ना। जैसे मैं स्क्रीन से बात कर रहा हूँ, सब बच्चों ने, आप लोगों ने अपने स्क्रीन ऑफ कर लिए हैं, है ना, आपके चेहरे दिखते नहीं और मैं स्क्रीन को पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही पेरेंट्स भी बात करते रहे आपके माथे से, आपके सिर से, क्योंकि गर्दन नीचे होती है, नजरें भी नीचे होती हैं। तो हियर मदर सेज टू हर डॉटर टू लुक इनटू हर आईज, टू हैव एन आई टू आई कांटेक्ट। जनरली इट हैपेंस विद अस। नेक्स्ट में क्या होगा? अगेन शी इज इन इमेजिनेशन, शी डजंट पे एनी अटेंशन। वो सोचती है कि आई एम रेपुंजल। ये रेपुंजल क्या होता है? आई हैव नॉट अ केयर, मैं किसी का केयर नहीं करूं, केयर फ्री हो जाऊं। आई मस्ट बी केयर फ्री। लाइफ इन अ टावर इज, जहां पे ट्रैंक्विलिटी है, शांति है बिल्कुल। ठीक है। एंड आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर नीचे डाउन नहीं करूंगी। अब सुनो इसका मतलब क्या है। पहले एक कहानी, एक फेरी टेल है, जर्मन की फेरी टेल है, जिसमें रेपुंजल नाम की एक लड़की है। ठीक है, स्पिरिट है, फ्री स्पिरिट है, टावर में रहती है। उसको वहां पे एक विच जो चुड़ैल होती है, उसने उसको कैद कर रखा है। एंड शी हैज अ लॉन्ग हेयर, उसके बहुत लंबे हेयर है। ठीक है, उस टावर में रहती है रेपुंजल, और वहां पे क्या करती है? क्या है वो? कुछ भी नहीं, बस दैट शी स्टेज देयर। वहां पे शांति है, ट्रैंक्विल मीन्स बहुत ज्यादा पीस होना। ठीक है, और वो केयर फ्री है, उसकी कोई चिंता नहीं, उस टावर में रहती है। ठीक है, उसके जो हेयर है, जो नीचे लटका देती है, तो जो विच है, जो चुड़ैल है, उस हेयर में चढ़ के ऊपर टावर में आ जाती है वो। लेकिन वो कहती है, बट आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। लेकिन मैं अपने हेयर नीचे नहीं डालूंगी। मीन्स शी इज इमेजिनिंग दैट शी मस्ट बी, या शी वर अ रेपुंजल, कि उसकी तरह रहे। तो अगेन द इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन पार्ट है दैट इज इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में है, इट इज इमेजिनेशन पार्ट। शी इज नॉट पेइंग हीड टू हर मदर। नेक्स्ट चलते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। फिर से कहती है, सल्किंग होता है मुंह फुला लेना, आप भी फुला लेते होगे मुंह, लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, रूठ जाते हैं थोड़ा सा कुछ बोलते ही, है ना। तो कहते हैं मुंह मत फुला। सल्क होता है एक तरीके से नाराज मत हो, उदास मत हो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत मूडी हो, एक मिनट में मूड खराब हो जाता है तुम्हारा, है ना। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। हर कोई ये समझेगा कि मैं तो जो है ना, नैग, नैग होता है बार बार शिकायत करना, कांस्टेंट स्कोल्डिंग, बार बार किसी को डांटना, नैगिंग होता है। कि हर कोई, अगर कोई देखेगा तो क्या जाएगा कि ये मदर तो जो है ना बस जीने नहीं देती। अमांडा का तो जीना मुश्किल कर रखा है इसने। एवरीबडी विल थिंक दैट आई नैग एट यू। नैग मीन्स कंप्लेनिंग अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड नैग एक्चुअली। तो जो ब्रैकेट में है दैट इज इमेजिनेशन, और जो बिना ब्रैकेट है दैट इज इंस्ट्रक्शन ऑफ द मदर एक्चुअली। तो दिस इज अ पोएम, इट्स वेरी सिंपल पोएम, बड़ी सिंपल सी है। इसके वो देखते हैं, पोएटिक डिवाइस देखते हैं। एक तो हमने डिस्कस किया, मेटाफर था। एक और है जिसको हम बोलेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बता सकता है किसी को? याद है एलिट्रेशन क्या होता है? सर किसी को? जिसमें कोई स्पेसिफिक लेटर बार बार रिपीट होता है।
बार बार रिपीट होता है। देखो मैं यहाँ एक शो करता हूं आपको, देखो स्टॉप सल्किंग, कौन सी साउंड बार बार रिपीट हुई? हुई Yes. हुई ना? स्टॉप सल्किंग एट वंस। Yes, sir. स जो साउंड है वो लगातार रिपीट हो गई, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एलिट्रेशन। ठीक है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, जो बिगनिंग में उन्होंने कहा था स्टॉप स्लाउचिंग, तो भी एस एस यानी स साउंड बार बार रिपीट हुई, तो दैट इज एलिट्रेशन। गेटिंग माय पॉइंट? एक और होता है जिसको हम बोलते हैं अल्यूजन। एक और पोएटिक डिवाइस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्यूजन। ये एल्यूजन क्या होता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन कैरेक्टर, जब किसी कैरेक्टर की तरफ हमारा इशारा होता है। ठीक है। इन्होंने दो चीजें यूज करी है यहाँ पे। एक इन्होंने यूज किया मरमेड, किसी किसी का मरमेड की तरह, पानी में कौन रहती है? मरमेड रहती है। और एक इन्होंने बोला रेपुंजल, तो इसको हम बोलते हैं एल्यूजन। एल्यूड करना, किसी से एसोसिएट करना, किसी कैरेक्टर से, हिस्टोरिकल कैरेक्टर से रिलेट करना, उसको हम बोलेंगे एल्यूजन। तो यहाँ पे एल्यूजन हम कहेंगे। ठीक है। रिपीटेशन भी आपको मिलेगा, अमांडा वर्ड हैज बीन रिपीटेड। मेटाफर भी मिलेगा आपको, गोल्डन, उसने कहा कि साइलेंस इज गोल्डन, तो जो पीस है दैट हैज बीन कंपेयर्ड विद गोल्ड, सो दैट इज metaphor. So these were the we can say poetic devices in this poem. चलिए नीचे देखते हैं इसके क्वेश्चंस, अगर हम कर सकते हैं अभी, we have time now. Yes, how do you think Amanda is? How old? कितनी बड़ी होगी वो आपके हिसाब से, कितनी बड़ी होगी? और आप कैसे इस अंदाजा लगाएंगे? How old? कितनी बड़ी हो सकती है? हो सकती है 35-36 साल की। No, sir. 10 to 12 years. 10 से 15 साल। 10 to 14. जस्ट अ किड, बच्ची है तभी तो उसको, हाँ टीनेजर तो काफी बड़ा हो जाता है बच्चा, लेकिन इवन यू कैन से कि शी इज अ स्मॉल चाइल्ड हु डजंट हु ऑलवेज लिव्स इन सर इमेजिनेशन। उसकी एज 10 से 12 ईयर के बीच में हो सकती है। मे बी, हाँ, दैट्स करेक्ट एक्चुअली। क्योंकि और सर अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू नो दिस, तो इसका आंसर ये है कि जिस तरह की हरकतें वो कर रही है, ये इसी एज का बच्चा करता है। सेकंड है व्हाई, सो हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? अमांडा से कौन बात कर रहा है? Who is talking? Mother, sir. मगर Her mother is talking. Why are stanza 2, 4, 6 are given in parenthesis? Parenthesis करने का मतलब होता है जब हम पोएम के कुछ लाइनों को ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, तो हम इसको parenthesis बोलते हैं पोएटिक लैंग्वेज के अंदर। पैरेंथेटिकल भी कह सकते हैं। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द पोएम, एक्चुअली दे आर द इमेजिनेशन। वो वर्ड्स कहे नहीं गए हैं, जो वर्ड्स कहे गए हैं दैट इज द पोएम। तो दैट इज व्हाई हम ये कहेंगे कि वो पैरेंथेसिस हैं। फोर्थ देखते हैं, हु इज द स्पीकर इन स्टैंजा 2, 4 एंड 6? कौन है स्पीकर? कौन है स्टैंजा 2, 4, 6 में स्पीकर कौन है? Amanda. अमांडा, वेरी गुड। Do you think this speaker is listening to the speaker in stanza 1, 3, 5 and 7? जो 1, 3, 5, 7 में जो बोल रहा है उसको अमांडा सुन रही है क्या? Is she paying Yes, attention to what her mother Yes, is sir. saying? No, she is not paying attention to what her mother is saying. She is just lost in her imagination. Fifth, what could Amanda do if she were a mermaid? Mermaid होती तो वो क्या करती बताओ? क्या करती? बताओ क्या करती? Mermaid. हाँ तो करती क्या ये बताओ ना। What she would be doing? She would be playing, she would be हम क्या कह सकते हैं, swimming in the sea, sea में घूम रही होती है। सेकंड स्टैंजा देखो ना, जो पैरेंथेसिस में है सेकंड स्टैंजा में इसका आंसर है।
6 is Amanda an orphan? क्या वो orphan है? No, sir. Why does she say so? ऐसा why did she say so? क्यों कहा उसने ऐसा? So that she can enjoy her life. She is not an orphan. She just imagines because her mother scolds her a lot. Her mother keeps instructing her and she doesn't like it at all. ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है. That's why she calls herself orphan, or we can say she imagines that if she were an orphan actually. Next 7. Do you know the story of Rapunzel? पता है आपको कहानी? Why does she want to be Rapunzel? तो पहले रेपुंजल की स्टोरी देखना मैंने आपको बता दी है. जर्मन फेरी टेल में ये कहानी है. और वो क्यों बनना चाहती है रेपुंजल? एक्चुअली शी वांट्स पीस, ट्रैंक्विलिटी, शी वांट्स टू बी केयरफ्री. और रेपुंजल जो थी वो टावर के अंदर रहती थी एंड शी वाज केयरफ्री. देयर वाज नोबडी टू टेल हर एनीथिंग, देयर वाज नोबडी टू इंस्ट्रक्ट हर एनीथिंग. तो वो वहां पे पीसफुल उसमें रहती थी, वे में रहती थी एंड नो केयर, फ्री थी वो बिल्कुल. शी हैड नो रिस्पांसिबिलिटी. 8. What does the girl yearn for? Yearn for होता है किसी चीज की डिजायर करना, इच्छा करना. What does this poem tell you about Amanda? किस चीज के लिए वो, what is she craving for? किस चीज के लिए बड़ी तंग है, परेशान है? बताओ बताओ. freedom, Yes, very good. बच्चों को freedom चाहिए होती है. बच्चों को यही चाहिए होता है, फ्रीडम ही चाहिए होती है. बाकी कुछ मिले ना मिले, बस फ्रीडम मिले. और ये बच्ची भी ऐसा ही कर रही है. ठीक है. और ये पोएम अमांडा के बारे में यही कहती है कि दैट शी वांट्स फ्रीडम एंड शी डजंट लाइक व्हेन हर मदर स्कोल्ड्स हर, व्हेन हर मदर इंस्ट्रक्ट्स हर. शी जस्ट वांट टू बी फ्री, केयर फ्री in her life. She doesn't want to have any responsibility. She doesn't even want to do her homework. She doesn't want to be instructed at any cost at any time. 9th है, read the last stanza. Do you think Amanda is sulking and is moody? आपको क्या लगता है कि वो sulking और moody है last stanza के हिसाब से? मदर ने जब कहा बिल्कुल है. yes, जब मदर उसको डांट देती है तो वो भी उदास हो जाती है, जैसे शायद आप हो जाते होंगे. sometimes she is happy, sometimes she's sad. That's why her mother said that she was sulking. तो हम ये कहेंगे कि Amanda is so moody. उसके मन में जो आता है वो करती है, वही इमेजिन करती है. तो she is so moody actually. Clear? So students, this was the poem. If there is any doubt in this, you can tell me. अगर कोई और दिक्कत है, डाउट है तो आप मुझे बताएं. नहीं है? No doubt, so that's fine. तो I will send its PDF also, जो कि आप questions, answers, explanation, everything you will find in that. I'm sending to you. ठीक है? Today you will complete the questions and answers. कुछ और डाउट है किसी का? जल्दी से बताएं मुझे. no sir. No. सर क्वेश्चन आंसर की फोटो क्लिक कर